Bonjour. Today we will do Ashante 1 lesson 8 with Yun sortie on the army. Sortie is outing. An outing with friends. Armies is friends. Trua army. Trua means three friends. Saw dans a restaurant. Three friends are in the restaurant. First is Helen. Qu'est-ce que tu aimes? Do you like? Means what do you want to have? आपको क्या चाहिए? Andre. Andre said, j'aime les frites et la pizza. I like the frites. Frites means French fries. I like the French fries and the pizza. Then Helen said, et toi? And you, Ellen? Third friend is Ellen. Qu'est-ce que tu aimes manger? What do you want to eat? What do you like to eat? Aim is a verb. A I M E R. Aim is a verb to like. J'aime la pizza. I like to have the pizza. Helen. Bon, good. Nous mangions ensemble. We eat together. Ensemble means together. Andre said, le soir, this evening, tu as a concours. You have a concours. What is the meaning of concours? Competition. This evening, you have a competition, Ellen. Ellen. Ah, we. Ha, yes. We means yes. Je vais, I am going to. Vais is alle verb. Vais is alle. ALLER. Alle verb. I am going to sing. Chante is to sing. Danser is to dance. I am going to sing and dance. Helen said, tu chantes aussi. You sing also. Ellen. Oui, je chante et je joue du piano aussi. Yes, I can sing and I can play the piano also. Jouer is a verb to play. Jouer. Jouer is a verb to play. I can play the piano also. Andre. Formidable. Wonderful. Bonne chance. Good luck. Helen. Bonne chance. Good luck. Helen. Ellen said, Merci beaucoup. Thank you so much. Okay, now we will do the question part. Répondez aux questions suivantes. Respond the questions. Answer the following questions. Comment s'appellent les trois amis? What are the names of friends? Comment s'appellent
Le trua ami. Els sapla S apostrophe apple A double P E double L E N T apple. Their names are Helen H E with a Q L with graph N E Helen, Andre A E T A means and Ellen. Qu'est-ce qu'elle mange au restaurant? What they eat in the restaurant. Ils they eat mange la pizza et les frites. They eat the pizza and the fries. Take the correct answers. The first part. Dans le restaurant, Ilya, in the restaurant there are 3 friends, 2 friends or 4 friends. There are 3 friends. On the aim, on the like, on the को क्या पसंद आया था? On the like, list the 2 items, pizza and fries both. Third, vrai or faux. Mark true and false. Les amis sont au restaurant. The friends are in the restaurant. Vrai. They were in the restaurant. On the jouer du piano. On the play the piano. No. Ellen play the piano. That is faux. So soir this evening Ellen has the competition. Ellen has the competition. Yes. Vrai. Helen aim chante. Helen liked to sing. No, Ellen liked to sing, not Helen. This is false. This is tick, this is false, this is tick, this is false. Okay, this question is complete. Now, les verbs. The verbs. In French, there are 3 groups of verbs. First, ER ending, IR ending, RE ending. ER ending group has ending E, ES. जब हम लोग ER ending verb की बात करते हैं तो य के साथ एंडिंग लगती है E, ट्यू के साथ एंडिंग लगती है ES, एल के साथ एंडिंग लगती है E, नू के साथ एंडिंग लगती है ONS, वू के साथ EZ, एल्स के साथ ENT. ये एंडिंग हमारी जो वर्ब होती है हम उसको जब हमारी कोई भी वर्ब होती है, जैसे कि इधर हमने वर्ब लिया ए में वर्ब को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट इज रेडिकल और सेकंड इज एंडिंग. जो आखिरी के 2 वर्ड होते हैं उसे हम लेते हैं एंडिंग में, और लास्ट 2 वर्ड से पहले के जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे रेडिकल और स्टेम. ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे सेम रहते हैं. जो एंडिंग वाले वर्ड्स होते हैं उनकी जगह पे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
ये एंडिंग्स लगा देते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट य है तो ई, त्यू है तो ई एस, इस तरीके से हम एंडिंग को चेंज करते हैं। तो जैसे अगर हमारी वर्ब है शांति, तो हम लोग CHANT अपना सेम रखेंगे और ER की जगह ये वाली एंडिंग्स लगा देंगे। अब हमारा अगला टॉपिक आता है ल रेपा, द डिशेस। कैस कत यू एम, वट डू यू लाइक टू हैव? शेम लगातो, आई लाइक द गातो, गातो इज केक। देर आर सम आइटम्स, फूड आइटम्स, ले चिप्स, द चिप्स, ल सैंडविच, द सैंडविच, ल chocola, the chocolate, le frites, the fries, la gato, the cake, la burger, the burger, la pizza, the pizza, la crepe, the pancake. Qu'est-ce que tu détestes? What do you dislike or hate? What you don't like to have? Je déteste le sandwich. I hate the sandwich or I dislike the sandwich. जो आपका ए में वर्ब होती है और डिटेस्ट होती है, एक दूसरे की अपोजिट होती है। ए में मीन्स टू लाइक, डिटेस्ट इज टू डिसलाइक। अभी आपके कुछ वोकेबलरी है इस चैप्टर की विच यू हैव टू लर्न। पॉन्शॉन्स, गुड लक, कमॉन्डे, टू ऑर्डर। इंग्लिश में भी हम लोग ऑर्डर को बोलते हैं कमांड, टू कमांड करना, किसी को ऑर्डर देना। ensemble मतलब टुगेदर। फॉर्मिटाबल मतलब ग्रेट या वंडरफुल। ल रेकॉन्त्र, रेकॉन्त्र मीन्स किसी को मिलना, मीटिंग। ल रेपा फूड आइटम्स। ले चिप्स, चिप्स, फ्रिट्स, फ्राइज, बर्गर, बर्गर, शोकोला, चॉकलेट। कॉन्कूर, कॉम्पिटिशन, गातो, केक, पियानो, पियानो, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, सैंडविच, सैंडविच, क्रेप, पैनकेक, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। Conjugate the verbs. Here are some verbs which we have to conjugate according to the subject. अब हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है य, तो य के साथ हमारी निकालते वर्ब का ER। अब इसको हम चेंज कर देंगे। रेडिकल हम ऐसे कैसे रखेंगे, इसमें हमारा रेडिकल क्या रहेगा, REGARD। ER की जगह हम लोग य के साथ क्या लगाते हैं, E, तो हमारी एंडिंग हो जाएगी E। ऐसे ही डिटेस्टे में हमारा जो रेडिकल है वो सेम रहेगा, वो है TETEST, और ER की जगह हम लगा देंगे E। तो बिल्कुल ही अलग वर्ब होती है जो कि आपको याद करनी पड़ेगी, वो हमारी रेडिकल के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। एथ जो है वो के साथ आता है, एथ E TES, एथ। राहुल शांते, अब शांते में हमारा रेडिकल रहेगा CHANT और ER की जगह आ जाएगा E। एल्स, एल्स आबिद का ER हटा के बाकी का हमारा रेडिकल सेम रहेगा और ER की जगह हम लगा देंगे ENT। अववार की कॉन्जुगेशन आपकी बिल्कुल ही अलग रहती है। अववार की कॉन्जुगेशन लादो ए पॉल, अब इसकी जगह हमारा सब्जेक्ट रहेगा इल्स या एल्स। दोनों ही कंडीशंस में हमारी जो कॉन्जुगेशन रहती है वो रहती है ONT। अब हमारी आती है ए में वर्ब। ए में का भी आपका रेडिकल सेम रहेगा और ER की जगह हम लगा देंगे सिर्फ E। आले भी आपको पूरी वर्ब लर्न करनी पड़ती है। आले नो के साथ होती है आलॉन्स। अब हम पहुंच गए हैं मैच द फॉलोइंग्स पे। य डिटेस्ट, आई हेट द सैंडविच।
A. L A. He is intelligent. वो काम ते bonbon. Du Abid, you live in Delhi. Nous jouons, we play football. अब हमको इसमें लगाना है फाइंड द ऑड वन आउट। जो बाकियों में से जो सबसे अलग होता है हमको उसको चूज़ करना है। तो यह हमारा सब्जेक्ट है, ट्यू भी हमारा सब्जेक्ट है, नो भी हमारा सब्जेक्ट है। AI जो है ये हमारी वर्ब है, तो ये हो जाएगी हमारी ऑड वन आउट। एम इज़ अ वर्ब, यू इज़ अ वर्ब, शांति इज़ अ वर्ब, टॉन्सो इज़ अ वर्ब बट इट्स अ कॉन्जुगेटेड फॉर्म। इसको हमने नू के साथ कॉन्जुगेट किया हुआ है, बाकी सब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, अपनी इन्फिनेटिव फॉर्म में है। और इंडेफिनिट आर्टिकल है, यून इंडेफिनिट आर्टिकल है, दे भी इंडेफिनिट आर्टिकल है, पर ले आपका डेफिनिट आर्टिकल है। शोकोला, गातो, क्रेप ये सारी आपकी डेजर्ट्स है। पॉम जो है आपका फ्रूट है। एप्पल, पॉम मीन्स एप्पल। कैसका वो एम, अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आइटम लिख सकते हैं, बस पैटर्न सेम आना चाहिए। व्हाट डू यू लाइक, ये आई लाइक। अब आई लाइक क्या गया, आप आइटम कुछ भी लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग पिज़्ज़ा, आई लाइक द पिज़्ज़ा। एंड सेकेंड, इसमें भी मैं सेंटेंस सेम रख रही हूँ, बस आइटम चेंज कर रही हूँ। शेम लव गातो, आई लाइक द केक। कैसका वो डिटेस्ट, व्हाट डू यू डिसलाइक, यू डिटेस्ट the sandwich, I don't like the sandwich. And we can also write something else, you detest the juice. Or you can write something from your book only. Here we have some items. Shame detest the chips. Shame detest the chips. I dislike the chips. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। Fill in the blanks using the given words. हम इसमें नंबर डाल देते हैं। Your dash Sandrine, my name is Sandrine. Your dash a Paris, Paris में हम क्या कर सकते हैं, we can live in Paris. J'habite a Paris. ये dash ons. I am 11 years old. Il y a 5 membres dans ma famille. There are 5 members in my family. J'aime ma famille. I like my family. Aim. Okay. Question number 6. Conjugate the verb. अब हमको इस पूरी दोनों से वर्ब को कॉन्जुगेट करना अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा यो के साथ। जब हम दोनों से को कॉन्जुगेट करेंगे तो DANS सेम रहेगा और लग जाएगा E। फिर हम लोग यही लिख देती हूँ मैं, ट्यू के साथ अगर करेंगे तो हमारा DANS सेम रहेगा, लग जाएगा ES। L और L के साथ मैं दोनों एक साथ लिख रही हूँ, आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। चलो मैं अलग अलग ही लिख देती हूँ। L के साथ DANSE, L के साथ भी, L और L के साथ कॉन्जुगेशन हमेशा सेम रहती है।
नू के साथ DANS सेम रहेगा, बाद में लग जाएगा ONS। हु के साथ भी DANS सेम रहेगा, बाद में लग जाएगा EZ। एल्स के साथ भी DANS सेम रहेगा, बाद में लग जाएगा ENT। एल्स के साथ भी सेम DANS ENT। आबित वर्ब भी हम सेम कॉन्जुगेट करेंगे। यो HABIT जो हमारा रेडिकल है वो सेम रहेगा, उसके बाद लग जाएगा E। ट्यू हमारा सेम रहेगा, उसके बाद लग जाएगा HABITES। एल हमारा सेम, एल के साथ हमारा रेडिकल सेम रहेगा, उसके बाद हमारा लग जाएगा E। एल भी हमारा सेम रहेगा, उसके बाद लग जाएगा E। नू के साथ हमारा रेडिकल सेम रहेगा, उसके बाद लग जाएगा ONS। हु के साथ भी हमारा रेडिकल सेम रहेगा, ओहो हमारा रेडिकल सेम रहेगा, उसके बाद लग जाएगा EZ। ये ES के सो गया, EZ। एल्स के साथ हमारा रेडिकल सेम रहेगा, उसके बाद लग जाएगा ENT। एल्स के साथ भी हमारा रेडिकल सेम रहेगा, HABIT, उसके बाद लग जाएगा ENT। ओके, आई होप आपको ये कॉन्जुगेशन समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमारा कॉम्पते भी सेम वर्ब है, जिसमें हमारा य के साथ COMPT सेम रहेगा, ER की जगह खाली E लग जाएगा। ट्यू के साथ COMPT, E के साथ SP लग जाएगा। एल के साथ COMPTE, एल के साथ COMPTE। नू के साथ हमारा रेडिकल है जो COMPT सेम रहेगा, फिर लग जाएगा ONS। वू के साथ हमारा रेडिकल जो है वो सेम रहेगा और फिर लग जाएगा EZ। एल्स के साथ हमारा COMPT सेम रहेगा, फिर लग जाएगा ENT। एल्स के साथ भी हमारा COMPT सेम रहेगा, फिर लग जाएगा ENT। ओके, अगला क्वेश्चन आपको लिसनिंग का है, क्योंकि हमारे पास लिसनिंग की ऑडियो हम नहीं सुनते हैं। सो ये चैप्टर आपका होता है यहाँ पे फिनिश। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।